Congress has disowned Haryana Congressman Dharmveer Goyal's shocking comment on rape. The Congress leader Jagdambika Pal has said that it's his personal opinion and not the view of the party. But is this dismissal enough? Will Sonia Gandhi step in and sack the leader? देखिए, वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बयान नहीं है, न सरकार का बयान है। सरकार के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगर इस तरह से राज्य में कहीं भी कोई बलात्कार की घटनाएं हुई हैं तो दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी पुलिस करेगी। अब वो धर्मवीर गोयल का अपना अगर कोई व्यक्तिगत बयान है तो वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, इस पे कांग्रेस पार्टी उस पे देखेगी। और जहां तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी या सरकार का सवाल है, खुद सोनिया जी उस घटना को पे गई हैं, तो ये संवेदनशीलता दर्शाती है कांग्रेस पार्टी को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश सरकार इन घटनाओं को लेकर के कितना चिंतित है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जो इस तरह के मिसचीफ या क्रिमिनल्स हैं उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि इस तरह की घटनाएं न हो। So there you just heard Jagdambika Pal. The Congress has finally decided to disown the Haryana Congressman Dharmveer Goyal. His shocking comment, remember, on rape, he had said that 90% of rapes were consensual in the state of Haryana. Well, Congress leader Jagdambika Pal, you just heard, says that it was his personal opinion and not the view of the party. However, the big question is this sort of a dismissal enough? We'll have to wait and see if Sonia Gandhi is ready to step in and perhaps sack their leader. After all, remember, Sonia Gandhi had personally gone to Haryana to try and figure out why there are such increasing cases of rape which has come in. She had taken up the issue in a big way. We'll have to wait and see if she's now ready to sack her own leader for this. Joining us with the very latest is Manaman Singh Cheena from Chandigarh. Man, the big question is it enough what they have done? Congress is simply trying to distance itself from Goyal, but what about sacking him? Well, it remains to be seen whether any action at all is taken against Dharmveer Goyal, because when last spoke to him, he was still very firm on what he had said regarding his controversial comments on rape. He had not backtracked in any way. And in fact, if the Congress has to take any action, it has also to act against the Pradesh Congress Committee Chief Maulana, who had said that there seems to be a conspiracy in the manner in which these rapes were taking place. So acting against Dharmveer Goyal, who's a small-time leader in the interiors of Haryana, may not be enough when you have people sitting right at the top making such controversial statements about women being raped. Right, Manaman Singh Cheena, do stay on with us. Let's also tell you how the BJP has now reacted to this entire controversy. In fact, the opposition has slammed the Congress party over comments made by its leader. The opposition says that it reflects the mindset of the Congress party. It is understandable, Manaman Singh Cheena, that we have such comments coming in from the BJP. Before I come to you, let's listen in to what exactly the BJP said about the Congress mindset. देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि आज मरहम लगाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के नेता उस पर नमक छिड़क रहे हैं। निश्चित तौर से ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इस शर्मनाक बात पर जब श्रीमती सोनिया गांधी जी वहां गईं, उसके बावजूद भी कांग्रेस का रुख वही हो, तो अपने आप में कांग्रेस की नीयत और कांग्रेस के इस काम करने के तरीके पर सवालिया निशान स्वाभाविक है खड़ा होना। Well, joining us with the very latest is our Deputy Editor Kartikeya Sharma. Kartikeya, it's not surprising at all. The BJP simply got more ammunition against the Congress with this entire Goyal issue. You see, the Congress has got ammunition on this issue. It's embarrassing for the other party. But I would say that the mood within the Congress is very inward-looking, because the crisis they are facing at the center. Well, Kartikeya, sorry to interrupt you, but we are also joined by NCW Chief Mamta Sharma. Ma'am, what would you make of such comments, and do you think that it is enough for the Congress to simply say it's his personal view and they are trying to distance themselves but not really taking any action against a minister who said that 90% of rapes were consensual? मैं इससे ये कहूंगी कि जो भी उन्होंने कहा है वो गलत कहा है, और इसलिए गलत कहा है कि सेक्शन 376, इसके बाद भी सब सेक्शंस और हैं, 4 सब सेक्शंस हैं, तो इसमें
सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है अगेंस्ट विदाउट विल एंड विदाउट कंसेंट, तो रेप है ही सही, नंबर 1। नंबर 2, अगर कंसेंट है भी सही और वो बिलो 16 है तो भी रेप माना जाएगा। नंबर 3, चाइल्ड मैरिज जो है उसमें हम लोग अगर वाइफ चाइल्ड मैरिज में बिलो 15 ईयर्स है तो भी वो रेप माना जाएगा, चाहे उसकी कंसेंट है या नहीं है। आप अपनी बीवी के साथ भी इंटरकोर्स नहीं कर सकते, वो भी रेप की कैटेगरी में आता है। और फोर्थ जो है वो ये है कि धोखे से या कुछ भी ड्रग या कुछ देके उसकी कंसेंट ले ली जाए, अगर वो पागल है तो उसकी कंसेंट ले ली जाए और फिर अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो वो भी रेप की कैटेगरी में आता है। तो मैं समझती हूँ जो भी कहा है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा हो, जो कहा है वो गलत कहा है। रेप तो रेप ही है। Ma'am, what happens when a leader of a Congress party is actually coming out and in society he's openly declaring something like this? What is the kind of message that's going to go out? जिसने भी कहा है, I'm not talking about any political party. सिर्फ मैं यही कहूंगी कि जो भी कहा है वो गलत कहा है। रेप की अपनी एक अलग वो है, रेप ही कहलाएगा। तो जो मैंने आपको 4 सब सेक्शंस बताए हैं, उनके बावजूद अगर इंटरकोर्स होता है तो वो रेप की कैटेगरी में आता है। Ma'am, do you think the sort of action that we've seen the Congress take against him, which is basically not much, they've simply distanced themselves, do you think that this sort of action is enough to stop people from making comments like this publicly next time around? Well, it seems that we lost the line there. Let me go across to our deputy editor, Kartikeya Sharma, who's also online with us. Kartikeya, do you think that after the opposition ire which the Congress is already facing, it might be forced to take some sort of action, some concrete action against Goyal? See, it's very embarrassing for the party, but for to take action against Mr. Goyal, they at least have to send him a show cause notice. Now, the committee is actually headed by, it's constituted by A.K. Antony, Motilal Vora, and 2 other senior CWC working committee member of the Congress party. So before they suspend a person, they need to send a show cause notice. So as of now, the committee hasn't met, but I would say that the gravity of the situation is such, and the issue has become big with the crime statistics which have emanated from the state of Haryana. So I would say yes, at least to give a message, they would definitely reprimand the person because the language which he used and in the way he approached the subject of rape was truly condemnable. Right. In fact, Kartikeya, do stay on with us. Ranjana Kumari now joins us. She is a social activist. What do you make of this entire statement which has come out from the Congress leader saying 90% of rapes are consensual? How would you react to that? This is absolutely appalling. Shamelessly, a person who is supposed to be a politician who's representing people there, talking against women's dignity. It is just that, this reflects on what kind of, reflection on the kind of mindset people in Haryana have. One side, the government is, all 18 rapes that have been reported in last 30 days is saying that this is some kind of a political vendetta. The other side, Mr. Chautala says marry them at 15. And here is this politician, instead of putting pressure on the government, he belongs to the ruling party, instead of ensuring that, all the rapists are arrested and, put for justice. But all that is gone just out of the window for him, and he thinks that young, innocent girls who have been raped, and out of which 6 are Dalit girls who have been raped. To say such a shameless thing is not acceptable. We have already demanded that party should throw him out. We have already said that he must apologize to women of India for having, this is really crooked, shameless thinking, I can say that. Ma'am, don't you think that political parties do have social responsibilities? Once their leader makes statements such as this, they need to take some strong action, but we haven't seen any action coming forth from the Congress. Incidentally, the president herself is a woman. Really, and she visited the rape victims' place. She was there in Haryana to show her concern for the issue, because after all, the government is of Congress party, and the same party person who's belonging to one district, and I think he's the president of a district, he has no business to be there, because he's supposed to be leading the society towards social change. And look at the condition of Haryana on every social account, on every gender empowerment account. Haryana today is lagging behind. There's mass
female feticide going on. There is so many girls who have been killed in the name of honor. There has been so many reported cases of all forms of violence. Girls are not, every third girl is not in school in Haryana. Instead of paying attention to all this, and also, as heinous crime as rape, this man is saying that girls go willingly. I mean, he's just talking out of his mind. And he must not, party must ensure that such people do not belong in the party, whichever ruling party or opposition party or whichever political party it is. Absolutely. Ma'am, do stay on with us. We are now joined by Dharamveer Goyat. Sir, what would you make of these statements which are coming in? Are you in agreement with what you had said that 90% of these rape cases were consensual? Do you still think so? Hello. सर, आपको मेरी आवाज आ रही है मिस्टर गोयत? हिंदी में बात करिए, हिंदी में। सर, आपको अभी भी लगता है कि 90% ऐसे रेप केसेस कंसेंशुअल होते हैं? ये आप हमें फिर से बोल सकते हैं क्या? ऐसा है बहन जी, ऐसा नहीं करता। मेरी पूरी बात सुनिए। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। मेरी पूरी बात सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि लड़की की शादी की उम्र 15 साल होनी चाहिए, नहीं मुद्दा ही था। लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने बाद मेरे से किसी ने सवाल कर लिया कि जी लोग कह रहे हैं कि लड़कियां सहमति से जा रही है। मैंने ये कहा था अधिकांश लड़कियां लोगों की राय के मुताबिक, मेरे को लोगों ने बताया, अधिकांश लोगों ने बताया है कि 90% लड़कियां सहमति से जा रही है। लोगों की राय थी ये। आपको ये किसने बोला? आप तो एक लीडर है, आप कांग्रेस लीडर है। आपने कुछ वेरीफाई किया है? आपने किसी फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी से आपने ये फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं बिफोर आपने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 90% वाज कंसेंशुअल? आपने जो बोला, आपको किसने बोला ये? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं कहा, प्रिंट मीडिया में किसी अखबार में नहीं है ऐसा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गपशप जब हो रही थी, जब बाद में पत्रकार बैठे थे कि जी लोगों में तो चर्चा ही है कि लड़कियां सहमति से जा रही हैं, मैंने ये कहा था कि अधिकांश लोगों की राय ये है कि लड़कियां अपनी सहमति जाती। मेरी राय नहीं थी, ना पार्टी के कोई लेना देना इस बात से। बट सर, आपने बिना किसी आधार के आपने ऐसा कुछ बोल दिया है, आप शर्मिंदा है ऐसे? ऐसा नहीं बोला मैंने ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला है। मैंने ये कहा है कि जब मेरे से किसी ने पूछा कि जी लड़कियां सहमति से जाती, मैंने कहा लोगों की राय है ये, अधिकांश लड़कियां 90% लड़कियां सहमति से जाती, लोगों की राय है, मेरी राय नहीं है, ना पार्टी का कोई लेना देना इस बात से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा ही नहीं था। तो आपने ये बोला कि नहीं? आपको लगता है कि नहीं कि ये बात आप खुद अग्री करते हैं क्या कि आपको इस बात पे इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, मैंने बोला ही नहीं है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं से, मैंने बोला ही नहीं है ये। मैंने ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई गपशप जैसे लगाते हैं उसके बाद की बात है। सर, मगर आप तो कांग्रेस लीडर है, आप जो भी बोले आपको पता है ये तो कवर होगा ही, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है क्योंकि आप पॉलिटिकल लीडर है। आप जो बोलेंगे उसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है सोसाइटी पे। ये बहन जी दोबारा फिर कह रहा हूँ ना, मैंने ऐसा बोला है। मैंने ये कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। मेरा बयान, पूरा बयान देखिए, उसमें ये था कि भाई अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि लड़की सहमति से जाती है, वो भी आगे से किसी ने पूछा था मेरे से। तो आपने पूरा बयान क्या था? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? मैं ऐसा नहीं सोचता। मैंने क्या कहा था और बना दिया क्या? ये तो देखो मीडिया जैसे बनाता है उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। मैंने केवल और केवल ये कहा था कि भाई अधिकांश लोग मुझे ही कहते हैं, लोगों की राय अधिकांश की, मेरी राय नहीं है, ना ही पार्टी की राय है। ये पार्टी से कोई लेना देना इस बात का, ना मेरे से कोई लेना देना। अधिकांश लोगों की राय प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद की बात है ये। प्रेस मीडिया में प्रिंट मीडिया में कोई बात नहीं आई मेरी, वहां 20 लोग थे। सर, आप एक मिनट हमारे साथ बने रहिए। लेट्स ऑल्सो लिसन इन टू व्हाट ही हैड सेड। फिर से आप सुन लीजिए कि आपने बोला क्या था, उसके बाद आपसे फिर से बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में मुझे कोई संकोच नहीं एक बात कहने से कि 90% लड़कियां सहमति से जाती हैं। आगे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं जो हवस का शिकार होते हैं। लड़की को ये पता नहीं होता कि आगे 5, 7, 10 है। तो 90% लड़कियां जाति सहमति से हैं और आगे जाके अपराधी व्यक्ति मिल जाते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं।
मैंने ये कहा था, लड़की पहले सहमति से जाती हैं अधिक संख्या में, और आगे जाके उनको लड़की को पता नहीं होता, बूढ़ी बाड़ी लड़की को आगे कुछ हवस जुटाने के वाले लोग काफी मिल जाते हैं और उससे फिर गैंग रेप में परिवर्तित हो जाता है। मैंने ये कहा था, एक आदमी बेड़ा फुसला के ले जाता है और आगे ग्रुप में मिल जाते हैं हवस के शिकार लोग। ऐसा कोई मामला नहीं है कि लड़की का अपहरण किया हो और उसके साथ गैंग रेप हुआ हो, ऐसा हिसार जिले में कोई मामला नहीं आया हमारे। मिस्टर गोयत, हमने अभी अभी सुना कि आपने क्या बोला था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने खुद बोला कि 90% लड़कियां खुद सहमति से जाती है। आपको यही लगता है क्या? सुनिए, बीच में बातें काट दी गई मैडम, पूरी बात नहीं दिखाई गई इसमें। मैं आपको कह रहा हूँ, वहाँ प्रिंट मीडिया भी था, किसी अखबार में देखो, सभी अखबारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आई हुई है, ये मुद्दा ही नहीं था वहाँ। मगर सर, आपने किस बुनियाद पे ऐसी कोई बात कर दी? क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपका भी तो कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप लीडर हैं, आप जो बोलेंगे सभी सुनेंगे ही। नहीं, मैंने ऐसा है, सुनिए बहन जी, देखो मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ, मैंने ना मेरी राय है ये, ना पार्टी की राय, अधिकांश लोगों की राय बाद में गपशप में थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। आपको अगर लगा कि आपने कुछ गलत नहीं बोला तो उसके बाद अगली बार आपने आके फिर जस्टिफिकेशन क्यों दिया उसका? कब दिया? हमने अभी अभी सुना आपने जो जस्टिफिकेशन दिया, आप बोला था कि मेरा मतलब ये नहीं था। ये मैंने साफ कहा था कि अधिकांश मामले इसमें ये भी दिखा हुआ, आप मैंने ये भी दिया था कि कुछ लड़कियां घर से भाग जाती हैं लड़कों के साथ, वो कोर्ट की शरण ले लेती हैं, माँ बाप FIR दर्ज करा देते हैं, कोर्ट की शरण में जाके वो शादी में परिवर्तित हो जाता है और इंटरकास्ट मैरिज होती है, हमें उसमें कोई एतराज नहीं, हमारी सहमति, मैंने ये भी कहा था उसमें। और आपको कांग्रेस के लीडरशिप ने आपको के साथ इस बारे में बात की है क्या? नहीं, किसी की कोई राय नहीं थी ये, ना किसी लीडरशिप की राय है, ना पार्टी की राय है। मैंने तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अगर इस बात में आप नहीं मानते तो आपकी मर्जी है। मैंने तो ये कहा था कि अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि 90% लड़कियां सहमति से जाती हैं, अधिकांश लोग कहे हैं, लोगों की राय बताई थी, मेरी राय नहीं थी। मगर आप जो बोले वही तो कांग्रेस की भी राय हो जाएगी, क्योंकि आप कांग्रेस के लीडर हैं। नहीं, आप मानवता के नाते देखिए, इसको ब्लैकमेल करना चाहें तो बात अलग है। मैंने जो बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की बात है ये। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो या पहले हो, आप एक सोशल लीडर है, आप लीड करेंगे तो आपके पास जो भी आप बोलेंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा इस सोसाइटी पे। ऐसा है बहन जी, मैं तो आपको साफ बता रहा हूँ, ना तो पार्टी की राय थी, ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुद्दा था। मुद्दा 15 साल की लड़की से शादी का था, इसमें ये बात थी नहीं जो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब सभी लोग कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी जी को बोल रहे हैं कि उन्हें आपका इस्तीफा मांगना चाहिए, अगर वो मांगे आप देने के लिए तैयार हैं? अगर पार्टी जो चाहेगी हुक्म करेगी मैं तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं। पार्टी जो कहेगी सर्वप्रिय पार्टी। आपको लगता है इस स्टेटमेंट से कांग्रेस का इमेज खराब हुआ है हरियाणा में? नहीं, स्टेटमेंट ऐसा नहीं है बहन जी, ऐसी नहीं है। फिर आप बार बार इसको कह रहे हैं। देखिए, पॉजिटिव होती है, मानवता के नाते मैंने ये कहा था भाई, अधिकांश लोगों की राय, मेरी राय नहीं है ये, ना पार्टी की राय है। Well, Mr. Goyat, thank you for speaking to Headlines today. There you just heard Mr. Goyat yet again giving a justification and clearly saying that this is my personal opinion and this has nothing to do with the party, even though he knows very well that political leaders also have social responsibility. He goes on to say that if the party wants, he will give in his resignation.